this session we discuss about the Poiseuille equation, a very useful equation to solve out some problem. We remember this equation directly. Okay, we derive this equation and then after you just use this equation into the different example. Okay, let's start with the derivation. So what is this Poiseuille equation first, and you consider this type of situation, then after we derive this relation. Suppose it is a pipe, you understand. Okay, what is this? A pipe. In this pipe, suppose the fluid is passing. In this pipe the fluid is passing. यहाँ से fluid flow हो रहा है, ऐसा मान के चलो. Suppose in the pipe the fluid is flowing. So some opposite velocity is produced, means there is some viscous force is produced. So its velocity is decreases. Its velocity is what? Decreases. So if you maintain the constant velocity inside the fluid, inside this pipe, if you maintain the constant velocity, then you must be applied some additional force to this fluid flow. Okay, so due to viscous force, velocity of fluid is decreases. मान लो कि इसमें से जो फ्लूइड पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो ड्यू टू द विस्कस फोर्स द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज व्हाट? डिक्रीजेस. सो if you maintain the constant velocity inside it, then we must be supply some additional force to the fluid also. Okay, so for maintain the constant velocity inside a pipe, some additional force is applied to fluid flow. या फिर additional force is required. Actually some additional force is only applied, but if it is must be required. Additional force is required which is applied on the fluid flow. Okay, so ऐसा कुछ केस है आपके पास, तो आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्रेशर हाई रखोगे. मान लो यहाँ पे आपने प्रेशर रखा P1, यहाँ पे आपका प्रेशर है P2. So if P1 is greater than P2, then this pressure force is applied on the fluid element in the fluid flow. So the velocity inside this pipe is what? Constant. Okay, तो यहाँ पे velocity अब मान लो maximum होगी. You consider at the center the velocity is what? Maximum, and at this end the velocity is what? 0. यहाँ पे velocity कितनी हो जाएगी? 0. और यहाँ पे velocity कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम. तो यहाँ पे भी आपको एवरेज वेलोसिटी से कुछ काउंट करना होगा. ओके, वेलोसिटी इसकी कंटिन्यूसली चेंज होगी. वेलोसिटी से कंटिन्यूसली कैसी होगी? चेंज होगी. एट द सेंटर वेलोसिटी इज मैक्सिमम, एट द बाउंड्री एज वी डिस्कस इन द विस्कोसिटी एज द बाउंड्री वेलोसिटी इज व्हाट? 0. ओके, तो पहले वेलोसिटी फाइंड करते हैं, उसके बाद हम फ्लूइड फ्लो कितना फ्लो होगा वो फाइंड करते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हो एट द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. हाउ मच इट इज? सो हियर सम प्रेशर फोर्स is maintain the constant velocity inside the pipe. This pressure force is maintain the constant velocity inside the pipe, क्योंकि वो viscous force जो भी प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा. मतलब जितना भी अपोज हो रहा है उसको एडिशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ओके, तो फाइंड करने के लिए आप क्या करो? इसमें एक एलिमेंट कंसिडर करो. चलो, सपोज वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट इनसाइड द पाइप. सो ये फ्लूइड फ्लो का कोई सिलेंड्रिकल एलिमेंट ले लो. चलो ऐसा. ओके, उसकी आप रेडियस मान लो x, इसकी रेडियस कितनी मान लो l, x, एंड लेट्स वी राइट सम डेटा फॉर द पाइप ऑल्सो. द लेंथ ऑफ पाइप इज सपोज टू बी l and the radius of pipe is supposed to be r. Radius of pipe is what? r. Okay, ऐसा कुछ आपके पास डेटा है, and we have to find the velocity inside the pipe first. तो आपने प्रेशर मेंटेन किया, x cylinder that is the element. So this is what actually element for us, fluid element. You consider what is this? A fluid element. Fluid एलिमेंट. आप कंसिडर करो कि ये क्या है? फ्लूइड एलिमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 सेंटर पे होगा आपका. सेंटर पे आपको x कितना रखना होगा? 0.
सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r, यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा r, ऐसा कुछ है। आप इस सिर्फ एलिमेंट पे फोकस करो, उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। सो हाउ मच प्रेशर फोर्स अप्लाइड ऑन द एलिमेंट, सो प्रेशर फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑन एलिमेंट वो कितना हो जाएगा, सो उसको लिख दो आप एफ पी, एलिमेंट पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, सो डेल्टा पी इंटू एरिया, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस वन, तो इसका एरिया कितना होगा ये, सो दैट इज अ वन टाइप ऑफ सर्कल, सो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी रेडियस है एक्स, तो हो जाएगा पाई इंटू एक्स स्क्वायर, सो दिस मच ऑफ फोर्स is applied on the element due to pressure. And how much viscous force on the element, viscous force on एलिमेंट, सो एफ वी कितना लगेगा उस पर, सो एफ वी का इक्वेशन है माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स, माइनस ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो एरिया इसका कितना लेना है, यू मस्ट बी नोट दिस, हियर वी कंसिडर द एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर, एरिया ऑफ फ्लूइड लेयर, तो यहाँ पे लेयर कौन सा है, सिलिंड्रिकल है, ओके। ये जो मैंने फ्लूइड एलिमेंट बनाया वो है सिलिंड्रिकल, तो उसका एरिया कितना होता है सिलिंड्रिकल का 2 पाई आर एल, तो उसका आंसर हो जाएगा माइनस ईटा इंटू 2 पाई, इसका आर कितना x है एक्चुअली, सो 2 पाई x, उसकी लेंथ कितनी है l, सो 2 पाई आर एल इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ ही रखना है क्योंकि वो जस्ट ऑटोमेटिकली साइन सेट कर देगा, ठीक है। इक्वेशन में ऑटोमेटिकली साइन जो है वो आ जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। नाउ दिस बोथ फोर्स आर, इफ वेलोसिटी कांस्टेंट इट्स मीन्स द प्रेशर फोर्स बैलेंसेस द विस्कस फोर्स, इफ वेलोसिटी इनसाइड द पाइप इज कांस्टेंट, okay, then the pressure force is balancing the viscous force. So let me write, so here pressure force balancing the viscous force, इसका मीनिंग हुआ F प्रेशर इज इक्वल टू F विस्कस, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सिंपल सा केस है, तो आंसर हो जाएगा डेल्टा P इंटू पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू 2 पाई एक्स इंटू एल इंटू डी वी बाई डी एक्स। इफ एनीथिंग इज कैंसल देन कैंसल इट, देन आफ्टर वी पुट जस्ट वैल्यू, ओके। सो एक्स एक्स पाई पाई कैंसिल करो इसको, तो ये दोनों कैंसिल होगा, वी एक साइड ले लो और एक्स एक साइड ले लो, v का टर्म एक साइड ले लो, x का टर्म एक साइड ले लो, तो आपका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन 2l एन ईटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो अपॉन 2 ईटा l, नेगेटिव साइन भी है तो माइनस भी आ जाएगा यहाँ पे। आप डी वी के साइड माइनस ले लो, चलो आप कौन सी साइड माइनस, डी वी के साइड ले लो, तो माइनस यहाँ पे ले लो, ऐसा कुछ आंसर, इनटू द रिमेनिंग इज व्हाट x, और डी एक्स भी यहाँ पे आ जाएगा, तो डी एक्स। टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो बाय integration what you get, see minus integration dv is equal to delta p constant upon 2 eta l constant, so integration x dx ऐसा कुछ हो जाएगा। now what is the limit of v and x, see तो ओरिजिनल थ्योरी में देखो, when the x is 0 so v कितना है, v मैक्सिमम मान लो v है, and when the x is r v कितना है यहाँ पे 0, see when the x is equal to 0, so x is changed from 0 to r and v is changed from v to 0, so let me put the value, so x is changed from 0 to r and v is changed from v to 0, ऐसा कुछ आपका आंसर होगा। तो इसका इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन v होता है, तो माइनस v लिमिट इज v टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन 2 ईटा l, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 टू r, ओके। या फिर अब x टू r भी ले सकते हैं आप, अगर पता नहीं आपको कोई पर्टिकुलर x पे वेलोसिटी चाहिए तो आप x ले लो, चलो उसके बाद हम 0 रख देंगे, मैक्सिमम चाहिए तो, ओके। तो हम यहाँ पे x से लेते हैं, तो हमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी मिल सकती है, ऐसा
आपको x पे वेलोसिटी चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ओके। उसके बाद अगर सेंटर पे वेलोसिटी चाहिए तो पुट द x इज इक्वल टू 0, वो हम बाद में भी कर सकते हो, तो आप x भी लिमिट रख सकते हो। सो x इज चेंज फ्रॉम x टू r, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो लोअर लिमिट 0 माइनस माइनस प्लस v हो जाएगा। सो v इज इक्वल टू डेल्टा p 2 इंटू 2 4 ईटा इंटू एल इंटू पहले r रखो इसमें तो r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखो x स्क्वायर, तो x पोजीशन पे आपको वेलोसिटी मिलेगी इसमें। इफ यू वांट a velocity at any point inside the pipe, then use this equation, okay, and this is the Poiseuille equation. So this equation is gives us velocity of fluid from axis of pipe. आपको कोई भी पाइप में फ्लूइड की वेलोसिटी चाहिए, आप इस इक्वेशन के फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबर दिस इक्वेशन, ओके, all of you must be remember this equation. You just use the directly it's this equation, okay. Now let we find the fluid flow rate तो फ्लो रेट मतलब Q फाइंड करना है आपको। मान लो तो यहाँ पे पाइप में तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। मान लो कि हमने जो पाइप बनाया था उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है सभी जगह पे, अलोंग द रेडियस, हाँ अलोंग द रेडियस बात कर रहा हूँ। तो इसमें वेलोसिटी मतलब सेंटर पे मैक्सिमम है और यहाँ पे 0 है, तो आपको एवरेज लेनी होगी। यहाँ पे v 0 है, यहाँ पे v मैक्सिमम है, सो वी टेक द एवरेज वेलोसिटी। तो q का इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो द q इज इक्वल टू, सो व्हाट वी गेट, सी, सो द q इज इक्वल टू v एवरेज इंटू एरिया, एरिया ऑफ द पाइप। तो एरिया ऑफ द पाइप ए हो जाएगा, सो एरिया इज इक्वल टू ए। अगर इसकी रेडियस आप मान लो कि r है तो ये आंसर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। सो एरिया नॉन है यहाँ पे, सो v एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा v एट सेंटर प्लस v एट बाउंड्री अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई पाई r स्क्वायर। तो v का इक्वेशन अभी हमने डिराइव किया, यहाँ पे लिख देता हूँ। सो v इज इक्वल टू डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। सो अगर आप x इज इक्वल टू 0 ले रहे हो इसमें, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vc, v सेंटर, तो उसका आंसर कितना मिलेगा, सो डेल्टा p अपॉन 4 ईटा l इंटू आर स्क्वायर। और x इज इक्वल टू r ले रहे हो तो v इसमें क्या होगा, v बाउंड्री, वो कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू रखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। सो पुट दिस ऑल दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, देन q इज इक्वल टू व्हाट, vc प्लस vb, तो vb तो 0 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर, डेल्टा p इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। सो 8 ईटा l इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मतलब फाइनली द q इन अ पाइप इज गिवन बाय पाई इंटू डेल्टा p, मतलब प्रेशर डिफरेंस इंटू आर स्क्वायर r रेस टू 4 अपॉन 8 ईटा l। इसको भी हम पोइसुइल इक्वेशन बोलते हैं। एंड दिस इक्वेशन गिव्स अस फ्लो रेट इन पाइप, विथ विस्कोसिटी, ओके। विस्कोसिटी काउंट नहीं करते तो आपके पास इक्वेशन है डायरेक्टली a इंटू वी, बट इफ यू कंसिडर द विस्कोसिटी देन द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो in pipe, find by using this equation, okay. So by this way you just get the answer, and all of you must be remember this. This is the quite interesting equation and which is helpful to solve out the problem directly, okay. चलो तो फर्स्ट से आप नोट कर लो इस पूरी थियोरी को, पोइसुइल इक्वेशन, ओके। चलो नोट करो इसको पहले। नाउ the second one and the third one, okay. So here you remember the two equation, velocity of a fluid at any position from the center of axis is given by the Poiseuille equation, and the fluid flow rate inside the any pipe with the viscosity is given by this equation, okay. And you remember the both equation,